حال ہے دنیا حاضر کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ ناظرین، آپ سب کا آج کے خصوصی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خصوصی پروگرام مذاکرہ۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب مولانا مظفر صدیقی صاحب۔ آپ کا آج کے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم مسئلے کے بارے میں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عام طور پہ لوگ اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، چاہے ملکی ہو، بین الاقوامی، داخلی ہو یا خارجی، بے شمار ہیں، لاتعداد ہیں، لیکن اسی کے ساتھ جب ہم مسلمانوں کے عمل کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کی کوششوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کی سوچ کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور ان کی سوچ اور کوششوں کے لیے اگر اخبارات اٹھائیے تو پہلے صفحے سے آخر صفحے تک روزانہ آپ کو 10، 15، 20 جلسے ملیں گے۔ یعنی مسلمانوں میں جلسوں کا جو اس وقت جلسوں کی جو کثرت ہے، بلکہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جلسوں کا کلچر جس طرح فروغ پا رہا ہے کہ مسلمان جلسے کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، بلکہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو اہم کام ہیں ان کاموں کے لیے بھی جلسے کرتے ہیں، یعنی کام سارا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے مہمان سے اس بارے میں بات کریں۔ محترم، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو مسلمانوں میں جلسوں کا کلچر پھیل رہا ہے، یہ مزاج کیا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ اس کو ایک بڑے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العظیم۔ آج مسلمانوں کے مسائل ہیں، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، بے شمار مسائل ہیں اور اس کے حل کی کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن نتیجہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کام میں کم یقین رکھتے ہیں اور جلسے جلوس میں، باہر لوگوں کے سامنے چرچے کرنے میں زیادہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسائل ہمارے دب جاتے ہیں اور نتیجہ نہیں نکل پاتا ہے۔ اسلام میں اگر ہم اس کا تصور دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور ہمیں نہیں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ان چیزوں سے، جیسا کہ قرآن کی آیت، اے ایمان والو، وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ آج ہمارا کام صرف بولنا رہ گیا ہے، کرنے کے حد تک ہم بہت پیچھے ہیں۔ اقبال نے اس کی تشریح کی، کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد اور ضرورت کے فرق کو اگر ہم سمجھ لیں، مقصد یہ ہے کہ جس کام کے تحت ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو ہماری نیت ہے کہ ہماری کامیابی ہو، جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہمارا پورا ہو، اس کے لیے کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ تو جلسے جلوس آج لوگوں نے اس کو ایک ضرورت بنا دیا ہے، اور خاص کر کے اس بر صغیر میں اس چیز کا زیادہ وجود ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی بات کے لیے سڑکوں پر اترتے ہیں، کسی بھی بات کے لیے ہم سڑکوں پر آ کر کے آندولن کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن عمل سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ کسی میگزین میں ایک بات چھپی تھی، کسی نے سوال کیا تھا کہ لوگ دین پر، مذہب پر جان دے دیتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو جواب دیا تھا کہ جان دینا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہی چیز آج ہمارے بیچ ہے۔ ہم لوگ سڑکوں پر اتر کر کے واہ واہی کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور مقصد ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم کس لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اور ہر ایک جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب نافع ضرور ہیں لیکن جامع نہیں ہیں، کام کر رہی ہیں، لیکن کام کے تعلق سے ان کے ذہن میں یہ منصوبہ نہیں کہ ہم کسی نتیجے تک پہنچیں، جس کی وجہ سے
नतीजा बरामद नहीं हो पाता है। जहाँ तक जलसे जुलूस की बात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही बड़ा जलसा, एक ही बड़ा इज्तिमा हमें मिलता है, और वो है हज्जतुल वदा के मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने, तकरीबन 1.5 लाख लोगों के सामने गुफ्तगू की थी। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये भी एक ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, तो उसकी वजह यह है कि फ़ायदा, उसका जवाब यह है कि फ़ायदा नहीं हो रहा है कुछ हमें। वजह उसकी क्या है कि हमारे जहन में अमल का तसव्वुर नहीं है। जो कौमें अमल करती हैं तो अमल करने में उनको वो चीज़ें, उनके पास इसका टाइम नहीं रहता है। जैसे दूसरे ममालिक में इसका वजूद हमें नहीं मिलता है, बहुत कम वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं है। क्यों? उनके पास टाइम नहीं है। वो लोग काम को समझते हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ गुफ्तगू करना चाहते हैं, और गुफ्तगू करने की वजह से काम दब जाता है, काम नहीं हो पाता है हमसे। इसी तरीके से दूसरे मामलात में हम जान सकते हैं। अब जहां तक यह है कि भाई किसी मामले में समझदारी से काम लेना, सोच करके मनसूबाबंदी के तहत कोई काम करना, और फिर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मकसद ये हो कि हम जलसे में चले जाएं, तकरीरें कर दें, जुलूस निकाल लें और अमल नदारत हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आज कौम का बहुत बड़ा सरमाया इन चीज़ों के पीछे खर्च हो रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए लोग खर्च कर दे रहे हैं सिर्फ जलसे जुलूस में, बैनर लगाने में। अगर हम इसको ज़मीन पर मेहनत करें और सही ढंग से मेहनत करें, सच्चाई के साथ, लगन के साथ मेहनत करें, तो उसका सही नतीजा हमारे सामने आ सकता है। हम औलिया किराम को देखें, सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखें, तो हमें ये चीज़ें उसमें मिलती हैं कि वहाँ पर अमल है, और अमल की वजह से उनके अंदर जिम्मेदारी और ये चीज़ें सामने आती हैं, जिसकी वजह से लोगों में तअस्सुर पैदा होता है और वो काम करने वाले बनते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इतनी तंजीमें हैं और इतने इदारे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा जी। सवाल ये है कि इन तंजीमों के जो जिम्मेदारान हैं, ये हमारे बड़े उलमा हैं, कायदीन हैं, दानिश्वर हैं, और इनकी तंजीमें हैं, लेकिन इन तंजीमों के पास कोई मनसूबा नहीं होता है। तो आखिर जो हमारे बड़े हैं और उनके पास कौम के लिए कोई लाया अमल नहीं है, कोई मनसूबा नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ से वो दूर हैं, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर इखलास की कमी है। अगर हमारे अंदर इखलास होता तो ये नतीजा सामने नहीं आता, जैसा कि आज नतीजा हम देख रहे हैं। इखलास की कमी की वजह यह है कि हर इंसान ये चाहता है कि अखबारों में वो छपे, हर इंसान चाहता है कि मीडिया की रौनक बने, हर इंसान चाहता है कि मजलिस में वो सदर मजलिस हो, हर इंसान ये चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। तो जब लोगों से तवक्कुआत रखते हैं लोगों से, तो उसकी वजह से वो हकीकत उनके अंदर से गायब हो जाती है, नतीजा सही समझ में नहीं आता है। जहाँ तक तंजीमों का मामला है, आज लोग, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि सिर्फ गुफ्तगू के हद तक इस्लाम पर गुफ्तगू करवा लें, इस्लाम की तारीफ करवा लें, इस्लाम की खूबियाँ बयान करवा लें। हर एक अपनी अपनी तंजीम की तारीफ करता हुआ नजर आता है, हर एक अपनी अपनी तंजीम की तारीफ और अपनी किताबों की तारीफ, या जिस ग्रुप में वो है, जिस गिरोह का वो है, उस गिरोह के उलमा की तारीफ ही करता हुआ नजर आएगा। आज हम पूरे उम्मत मुस्लिमा एक होने के लिए तैयार नहीं है, आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, और हर एक ये चाहता है कि दूसरों को जहन्नम रसीद कर दे, दूसरों को बातिल करार दे, दूसरों को बदमजहब कहें, दूसरों को गुमराह कहें, दूसरों को बदअकीदा कहें, और अपने आप में खुशफहमी में मुब्तला है कि हमारा अकीदा बहुत अच्छा है, हमारी सोच बहुत अच्छी है, हमारा अमल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से पीछे हैं। और बाद दफ़ा देखने को मिला कि बहुत से लोग जो किसी बड़ी बड़ी जमात से मुंसलिक हैं, जो इहयाए दीन की बात भी करते हैं, जो कुरान और सुन्नत की तालीम की बात भी करते हैं, जो लोग ये गुमान करते हैं, बल्कि वो लोग कहते भी हैं, करते भी हैं, कोशिशें भी बहुत करते हैं स्टेजों पर, लेकिन दीन की बात करने वाले जब अमली जिंदगी में आते हैं तो वो बिल्कुल अक्सर इस्लाम के खिलाफ होते हुए नजर आते हैं। एक साहब एक बड़ी जमात से ताल्लुक रखते थे,
बड़ी जमात से ताल्लुक रखते हैं, मशहूर जमात से, और उसके बहुत बड़े कारकुन, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन महफिल में गुफ्तगू हो रही है रिश्ते के ताल्लुक से, सिर्फ इस बिना पर रिश्ते से इनकार करते हैं कि लड़का मोटा है। कहाँ गई सारी बातें दीन की, इस्लाम की बातें कहाँ चली गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, 4 चीजों को तुम ये करो, और उसमें दीनदारी को तरजीह देने के लिए कहा। मना किसी को नहीं किया गया कि हसब नसब की बुनियाद पर, माल और दौलत की बुनियाद पर और दीनदारी की बुनियाद पर, इस तरीके से जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजें मिसाल देकर के कहा, उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं, तीनों को मना नहीं किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन तरजीह दिया दीनदारी को कि ना माल और दौलत को देखना है, ना हसब नसब को देखना है, ना हुस्न जमाल को देखना है, बल्कि देखना है दीनदारी को देखना है। तो दीनदारी असल चीज है, लेकिन होता क्या है कि उसको नहीं देख करके अब देख रहे हैं कि लड़के की उम्र कितनी है, लड़की की उम्र कितनी है, लड़की दुबली पतली है, लड़का बहुत मोटा है, इस तरह के तस्वुर आ जाते हैं। उसकी वजह से जब अमली जिंदगी में इंफरादी मामला हमारा होता है तो बिल्कुल ये अक्सर बदल जाते हैं। इसलिए आज हम लोगों की जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ गई है, एक स्टेज लाइफ हो गई है और एक निजी लाइफ हो गई है। स्टेज लाइफ में आप देखें बेहतरीन बातें लोग करते हैं, स्टेज लाइफ में आप देखें बेहतरीन बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि वाकई कुरान और सुन्नत का माहिर, कुरान और सुन्नत का पाबंद, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। लेकिन जब निजी जिंदगी में हम उन्हें झांक करके देखते हैं, अमली तौर पर वो बिल्कुल सिफर नजर आते हैं, जीरो नजर आते हैं। इसलिए जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन ममालिक में या तरक्की याफ्ता जो अक़वाम हैं, उनमें हम देखते हैं कि वो लोग काम को तरजीह देते हैं, इन चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं, और वो अगरचे वो गलत हैं लेकिन उसके बाद उनके पास कोई सही मेयार नहीं, उनके पास सही फिक्र नहीं, उसके बावजूद वो लोग काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम लोगों के पास सही फिक्र है, सही चीज़ें हैं, सही तालीम है, लेकिन हम लोग उससे बहुत पीछे नजर आते हैं। ना एक बात और हम इस वक्त करना चाहेंगे कि जब जलसों की बात होती है तो एक चीज़ साफ तौर पे नज़र आती है कि मुसलमानों में जलसों पे खर्च करने का बड़ा मिजाज है, और जलसे के मुंतज़मीन को भी खूब वसूल करने का ख़ास हुनर आता है। इसी तरह मुसलमानों में मदरसा और मस्जिद और जलसा, इन तीनों पे तो खर्च करने का मिजाज है, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों मसाइल हैं। हमारे पड़ोस में गरीब है, भूखा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, और ढेरों मसाइल हैं। हम उस पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन जलसों पे खर्च करेंगे, मदरसे में देंगे, मस्जिद में देंगे। ये मिजाज इस वक्त आम तौर पे पाया जाता है। इस मिजाज में तब्दीली कैसे हो सकती है? वही चीज़ है, अगर लिल्लाहियत आ जाए हमारे अंदर, तक़वा और परहेजगारी आ जाए हमारे अंदर, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन हमारे अंदर दिखावा जब आ गया, रियाकारी जब आ गई, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए कि स्टेज पर दिखता है, गली में, किसी के घर में, पड़ोस में अगर हम देते हैं तो वो दिखता नहीं है। एक इंसान 4 हज कर रहा है, 5 हज कर रहा है, लेकिन उसके पड़ोस में कोई भूखा इंसान है, पड़ोसी भूखे रह रहे हैं, बीमार है, उसके तरफ उसकी तवज्जो नहीं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि फलां ने 4 हज किए हैं, 5 हज किए हैं। इसी तरीके से लोग जलसों में बहुत पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े स्टेज, लाखों रुपए के स्टेज बनाते हैं, बल्कि अब तो करोड़ों रुपए की आगे कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनके हिज़्ज़ नफ्स के लिए है, वो उनके नफ्स के लिए वो करते हैं, अल्लाह के लिए नहीं करते हैं। अगर अल्लाह के लिए करते तो फिर वो खामोशी से खर्च करते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना। यहाँ हाल ये है कि हम अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़ारिब में जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन पर हमारी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। ना उनके तालीमी तरक्की के लिए हम कोशिश करते हैं, ना उनको, अगर वो बेकाम हैं तो हम उसको काम दिलाने की कोशिश करें, अगर वो नाकारा है तो वो अच्छा बनाने की कोशिश करें, अगर उनके पास माली कमी है तो हम उसके माली इमदाद करें, उनकी किसी भी तरह से हम उसकी मदद करें, तो ये बहुत बड़ा नेकी का काम होगा। लेकिन हम जो है इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरखिलाफ इन चीज़ों में हम खर्च करते हैं, और वही बात आती है कि इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी है वो वाहवाही है, लोगों में चर्चे होना। और इसी वजह से आप देखें कि अब हमारी ये चीज़ें भी, इबादतें भी अब दिखावे का जरिया बन चुकी हैं। बहुत से लोग जाते हैं, अब हज उम्रा करने के लिए भी जाते हैं, तो तवाफ करते हुए में आप देखेंगे कि सेल्फी लेते हैं
اور واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو ہم فلاں جگہ پر ہیں، ہم فلاں مقدس مقام پر ہیں. تو للہیت کہاں چلی گئی؟ وہاں تو یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوا کرتی تھی. تو اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور وہاں سے ہم سبق حاصل کریں، خدا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے، بعد کے ائمہ کی زندگی کو دیکھتے، تو یہ حالات ہمارے سامنے نہیں آتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ عمل کی طرف دھیان دیں، عمل کی طرف دھیان دیں، عمل کرنے والے بنیں، اور صرف گفتگو سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے اقبال نے کہا، اقبال بڑا اپدیش ہے کہ ان باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کوئی غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ جو جلسوں کا کلچر ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہمیں عمل کی طرف بڑھنا چاہیے. کب تک ہم گفتار کے غازی بنتے رہیں گے؟ ہمیں کردار کا غازی بننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اگر ایک لفظ میں دیکھا جائے تو وہ ہے عمل، گفتار نہیں بلکہ کردار. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.